ICSE question bank, distance and section formula. Sum number 1. Coordinates of A and B are -3, A and 1, A plus 4. Midpoint of AB is -1, 1. Find the value of A. -1 equal to -3 plus 1 by 2. सर पहला वाला में तो कुछ निकालना ही नहीं है, x का तो तीनों कोऑर्डिनेट मेरे पास है ही, तो x वाला नहीं चाहिए अपने को, कौन सा चाहिए? y वाला। सर y वाला का फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? y1 plus y2 by 2. So 1 equal to a plus 4 by 2. 2 equal to 2a plus 4. 2a plus 4 equal to 2, यानी 2a equal to 2 minus 4. 2a equal to -2, a equal to -1. 1991 में आया था कंपलसरी में 3 मार्क्स के लिए, उस समय आप लोग का जन्म भी नहीं हुआ था। पॉइंट A 5, -1 on reflection in the x axis is mapped as a dash. x axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of y coordinate. Also A on reflection in the y axis is mapped as a double dash. y axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of x coordinate. Write down the coordinates of a dash and b dash, a dash and a double dash. Also calculate the distance a double dash. a double dash का डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम लोग को देना है। a का कोऑर्डिनेट्स क्या है सर? 5, -1. a डबल डैश का कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5, -1. डिस्टेंस a डबल डैश, डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 5 का होल स्क्वायर, -1 - +1 का स्क्वायर, 5 + 5 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 यूनिट्स। नेक्स्ट सम नंबर 3, कैलकुलेट द रेशियो in which the line segment joining the point this and this is divided by the y-axis. Calculate the ratio in which the line segment joining the point 3, 4 and -2, 1 is divided by the y-axis. y-axis से डिवाइड कर रहा है, कोई भी पॉइंट यदि y-axis पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। कोई भी पॉइंट यदि y-axis पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y-axis डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, पूछा किस रेशियो में, तो y-axis पे पॉइंट लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब x वाला फॉर्मूला यूज करके रेशियो निकाल दो। क्या फॉर्मूला था सर? x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. तो 0 equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n. 0 into m plus n equal to -2m plus 3n. 0 equal to -2m plus 3n. 2m is equal to 3n, m by n equal to 3 by 2. So the ratio is 3:2. Number 4, the coordinates of the midpoint of the line segment PQ. Coordinates of the midpoint of the line segment PQ are 1, -2. Coordinates of P -3, 2. Find the coordinates of Q, A, B. -3 plus a by 2 equal to 1, -3 plus a equal to 2, a equal to 2 plus 3 यानी कि 5। 2 plus b by 2 is equal to -2, 2 plus b equal to -4, b equal to -6. So a, b यानी कि 5, -6. Next, sum number 5. Point A 2, -4 is reflected in the origin as a dash. Origin में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of both the coordinates. Point B -3, 2 is reflected in the x axis as b dash. Change the sign of y coordinate. x axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब change the sign of y coordinate. Write the coordinates of a dash and b dash. Calculate the distance. Calculate the distance a dash b dash. Square root of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट, -2 - +3 का स्क्वायर, 4 - +2 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। ठीक है सर, ए डैश बी डैश डिस्टेंस भी निकल गया। गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब इसमें स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल के देना आपने को। स्क्वायर रूट ऑफ 37 लिख के छोड़ने से आंसर नहीं चलेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 37 एक डेसिमल प्लेस मतलब 2 में निकालो और 1 में राउंड ऑफ करो। एक डेसिमल प्लेस में देना है मतलब 2 डेसिमल प्लेस में निकाल के 1 में राउंड ऑफ करके देना है। नंबर 6, P divides the distance between A and B. P divides the distance between A and B in the ratio 2:1. Minus 2, 1, 1, 4. Calculate the coordinates of P. तो Px is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. 2 minus 2 by 3, 0 by 3 यानी कि 0. Py is equal to my2 plus ny1 by m plus n. 8 plus 1 by 3, 9 by 3 यानी कि 3. So Px, y is equal to 0, 3. सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 7, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Prove that the point A, B and C are the vertices of an isosceles right angle triangle. A का कोऑर्डिनेट है -5,4, B का कोऑर्डिनेट है -1, -2, C का कोऑर्डिनेट है 5,2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सुनिएगा ध्यान से, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव यदि करना है तो दैट कैन ओनली बी डन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सर आइसोसेलेस भी प्रूव करना है और राइट एंगल भी प्रूव करना है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी -5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36, स्क्वायर रूट ऑफ 52। 52 का फैक्टर्स बनेगा क्या? 2√13 बनेगा। ठीक है सर, देखते हैं। BC 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। 5 प्लस 1 is 6 का स्क्वायर 36, 2 2 जा 4 4 जा 16। तो सर ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 52 आ रहा है। AC निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट ऑफ 104। सर तीनों साइड निकल गया। तीनों साइड देख के मेरे को समझ में भी आ गया कि ये ट्राइंगल ऐसा है। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इफ इट इज राइट एंगल, इट इज राइट एंगल एट B। AB और BC, AB एंड BC इक्वल साइड है। देखो AB का वैल्यू और BC का वैल्यू सेम आ रहा है, तो अब हमको यहाँ पर ये शो करना होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर है। आइसोसेलेस है वो तो प्रूव हो गया क्योंकि AB और BC सेम है। जितना AB है उतना BC है। राइट एंगल है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना होगा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर करने से AC का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। सर आ तो रहा है। √52 का स्क्वायर इज 52, √52 का स्क्वायर इज 52, 52 प्लस 52 इज 104 और ये √104 का स्क्वायर इज 104। Hence proved that it is isosceles right angle triangle। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होना चाहिए और राइट एंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई होना चाहिए। Therefore it is isosceles right angle triangle। इसमें कुछ और भी पूछा है। Find the coordinates of D so that ABCD is a square। बोला D पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट्स निकालो such that ABCD becomes a square। देखिएगा AB BC ABCD यहाँ आना चाहिए। बोला D पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालो such that this becomes a square। सर कैसे निकालें? Sir, which one will be the most easiest method? AC का मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, and that will also be the midpoint of BD।
तो AC का पहले मिड पॉइंट निकालो एंड दैट विल आल्सो बी द मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट निकालो, नाम दे दो इसको O का। A का कोऑर्डिनेट क्या है -5,4, ये रहा O और इधर B -1, -2, सॉरी C लेना होगा। C का कोऑर्डिनेट है 5,2, तो OX इक्वल टू -5 + 5/2 0, OY 4 + 2/2 6/2 यानी कि 3। तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया सर 0,3 और B का कोऑर्डिनेट्स है -1, -2, इसको ले लो A, B। सर B का कोऑर्डिनेट्स -1, -2, O का कोऑर्डिनेट 0,3, D का कोऑर्डिनेट्स A, B। -1 + A/2 = 0, -1 + A = 0, A = 1। -2 + B/2 करने से 3 आना चाहिए, -2 + B = 3 2 6, B = 8। So A, B is equal to 1,8। This is the most easiest method। है बहुत सारा, लेकिन ये सबसे इजी पड़ता है। So the coordinates of the vertex D will be 1,8। Next, number 8। A, B, C are the vertices of triangle ABC। तो A का कोऑर्डिनेट्स 2,2, B का कोऑर्डिनेट्स -2,4, C का कोऑर्डिनेट्स 2,6। Prove that ABC is an isosceles triangle। शो करना है कि ABC is an isosceles triangle। तो AB निकालो, 2 - +2 का स्क्वायर, 2 - 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 20। BC निकालो, 2 - +2 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर, 16 + 4 20। AC निकालो, 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 0 + 4 4 16 यानी 4। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है ना सर। प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सर कैसे प्रूव हुआ? AB = BC। जब दो साइड आपस में इक्वल होता है देन दैट ट्राइंगल इज कंसीडर्ड एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिंस AB = BC, therefore it is an isosceles triangle। Next, number 9। Point A जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -1 is reflected as A' in the y-axis। y-axis में रिफ्लेक्ट करना है तो change the sign of x coordinate। Point B on reflection in the x-axis is mapped as B'। B' का कोऑर्डिनेट दिया -2, 5। x-axis में रिफ्लेक्ट हुआ है मतलब y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है। चेंज होके 5 आया मतलब पुराना क्या होगा? -5। ये तो हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर में बहुत पढ़े हैं। चेंज होके 5 आया मतलब पहले क्या था? -5 और x में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A' एंड B। लिख दिए सर। Write the coordinates of the midpoint of the line segment A', B। A' का -4, -1, B का -2, -5, इसका मिडपॉइंट नाम दे दो उसका x का। x of x -4 ± 2/2, x of y -1 -5/2 -6/2 यानी कि -3। तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x of x, y will be -3, -3। नेक्स्ट सम नंबर 10। थोड़ा उल्टा पुल्टा टाइप का सम है सम नंबर 10। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने का चेष्टा कीजिएगा। In what ratio is the join of A 0,3 and B 4,1 is divided by x axis? सुनिएगा ध्यान से। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये लाइन x एक्सिस से डिवाइड हुआ मतलब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। तो y वाला को लेकर रेशियो निकालेंगे, लेकिन रेशियो निकालते समय एक तो एरर आएगा, देखना। y इज इक्वल टू क्या होता है? my2 + ny1 / m + n। 0 = m × y2 + n × y1 / m + n। 0 × m + n, m + 3n।
0 इक्वल टू m प्लस 3n, m इज इक्वल टू माइनस 3n, m बाई n इक्वल टू माइनस 3/1। सुनिएगा ध्यान से, एरर आया ना सर, नेगेटिव कैसे आया? रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव पे आता है, यहाँ नेगेटिव पे क्यों आ रहा है? क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्वेश्चन को आगे पढ़ो। ए बी प्रोड्यूस्ड इफ नेसेसरी, मतलब सर ये एक्चुअली जो लाइन है ये रहा ए, ये रहा बी, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस ना, वो ये इसके बाहर है। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग के सिलेबस में इंटरनल सेक्शन है, एक्सटर्नल सेक्शन नहीं है। क्लास 11 में जब आप लोग जाएंगे तब आप लोग पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है। अभी हम लोग के खाली इंटरनल सेक्शन है जिसमें रेशियो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव वाला हम लोग के सिलेबस में नहीं है। लेकिन तो भी अभी हम समझा रहे हैं और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। जब दो पॉइंट के इन बिटवीन कोई पॉइंट होता है तो उसको इंटरनल सेक्शन बोलते हैं। उसमें रेशियो जब निकालोगे इस फॉर्मूला को यूज करके तो पॉजिटिव आएगा, और जब दोनों पॉइंट के इन बिटवीन वो पॉइंट नहीं लाई करता, बाहर लाई करता है, जो पॉइंट ऑफ सेक्शन है वो यदि दोनों के इन बिटवीन लाई नहीं करके बाहर लाई करता है तो ये फॉर्मूला को जब यूज करके निकालोगे तो नेगेटिव रेशियो आएगा। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। In what ratio is the line of A and B is divided by the x-axis? AB produced if necessary. Write down the coordinates of the point where AB intersects x-axis. तो रेशियो जो अपने निकालेंगे वो -3:1 ही बोलेंगे। आप लोग पेज घुमा के देखो, वहाँ आंसर में भी वही लिखा हुआ होगा, -3:1। देखो लिखा हुआ है ना -3:1 आंसर में भी। अब जब इसका हम लोग x वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो जो m:n है उसमें m का वैल्यू -3 लेंगे और n का वैल्यू 1 लेंगे। हम लोग ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि ये हम लोग को नहीं माथा लगाना है, हम लोग का नेगेटिव में आ रहा है। हम लोग m का वैल्यू क्या लेंगे? -3 और n का वैल्यू 1। तो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, -3 इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m plus n. So this is -12 plus 0 by -2, -12 by -2 यानी कि 6. So the point will be 6,0. देखिए अब आंसर 6,0 है कि नहीं। तो यदि आप लोग इस टाइप का सम यदि गलती से आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। रेशियो नेगेटिव आ रहा है मतलब आप समझ जाओगे कि एक्सटर्नल सेक्शन है और उसके अंदर का कोई पॉइंट निकालना होगा ना। तो ये रेशियो यदि नेगेटिव है तो टेक m इज इक्वल टू माइनस एंड n इज इक्वल टू प्लस। नेक्स्ट नंबर 11 छोटा सा है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2a, 4 एंड -2, 3b is 1, 2a plus 1. The midpoint of the line segment joining 2a, 4 and -2, 3b is 1, 2a plus 1. Find the values of a and b. Midpoint formula use करना है। 2a plus minus -2 by 2 is equal to 1. x1 plus x2 by 2 यानी 2a minus 2 equal to 2. 2a equal to 2 plus 2 यानी 4. a equal to 2. 4 plus 3b by 2 is equal to 2a plus 1. 4 plus 3b by 2 equal to 2a plus 1. a का वैल्यू क्या है? 2. So 4 plus 3b is equal to, ये जो 2 है उधर चला जाएगा, 2 into 2 plus 1. 4 plus 3b equal to 2 into 2 to the 4 plus 1 is 5. 3b equal to 10 minus 4. 3b equal to 6. b equal to 6 by 3 यानी कि 2. तो a का वैल्यू भी 2 है एंड b का वैल्यू भी 2 है। सॉल्व कीजिए कॉपी में। Sum number 12. Point A 1, -5 is mapped as A dash on reflection in the x-axis. तो x-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब y कोऑर्डिनेट का साइन को चेंज करो। Point B 3, 2 is mapped as B dash on reflection in the origin. Origin में रिफ्लेक्ट करना मतलब दोनों कोऑर्डिनेट का साइन को चेंज करो। Write the coordinates of A dash and B dash. Calculate AB. सर A dash B dash पूछा था, निकाल दिए। AB का डिस्टेंस पूछा है
स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5, 2 2s are 4, 7 7s are 49, which is square root of 53 units. Next, number 13. The line segment joining A and B is divided in the ratio 1:3 at P. A line segment joining A and B is divided by P in the ratio 1:3. A का coordinate -1, 5/3, B का coordinate a, 5. The line segment joining A and B is divided in the ratio 1:3 at P. The point where the line segment AB intersects y-axis, जो point P है वो y-axis पे लाई करता है। Point P जो है वो y-axis पे लाई करता है, और कोई भी point यदि y-axis पे लाई करता है तो उसका x coordinate 0 होगा। कोई भी point यदि y-axis पे लाई करता है तो उसका x coordinate 0 होगा। x वाला वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं, x equal to mx2 plus nx1 by m plus n, 0 equal to 1 into a plus 3 into minus 1 by 1 plus 3, 0 into 4 equal to a minus 3, a minus 3 equal to 0, यानी a equal to 3। a का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में अपने को बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है सर, वैल्यू ऑफ a आ गया। नेक्स्ट पूछ रहा है कैलकुलेट इन व्हाट रेशियो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB, इन व्हाट, क्या बोला क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन में निकालने बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P का कोऑर्डिनेट्स निकाल के देना है। A का वैल्यू मेरे पास आ गया ना, दिस इज 3, 5, तो P का y चाहिए। P का y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, Py इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, 3 3 कैंसिल। Py का वैल्यू सर चाहिए 5 प्लस 5/4, यानी कि 10/4 विच इज 5/2, तो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 5/2। आंसर चेक कीजिए, पीछे से ही दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 14, पार्ट 1, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P that divides the line joining A -4, 1 and B 17, 10 in the ratio 1:2। फॉर्मूला यूज करते हैं, Px is equal to mx2 plus nx1 by m plus n, 17 minus 8/3, 9/3 यानी कि 3। Py is equal to my2 plus ny1 by m plus n, so this is 10 plus 2/3, 12/3 यानी कि 4। तो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा सर 3, 4। Next 14, part 2, calculate the distance OP where O is the origin। O का coordinates 0, 0 और P का coordinates 3, 4। OP distance चाहिए square root of 3 minus 0 का whole square plus 4 minus 0 का whole square। Square root of 3 3s are 9, 4 4s are 16, square root of 25 यानी कि 5 units। Next number 3, in what ratio does the y-axis divide the line AB। बोला जो y-axis है वो ये लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। A का कोऑर्डिनेट -4, 1, B का कोऑर्डिनेट 17, 10। बोला y-axis इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। y-axis मतलब वो पॉइंट y-axis पे लाई करेगा, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो y-axis पे लाई करेगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट विल बी 0। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द y-axis its x coordinate is 0। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या बोलेंगे, x वाला कोऑर्डिनेट को तीनों को यूज करेंगे। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, 0 इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, 0 इंटू m प्लस n इज 0, 17m माइनस 4n, 17m इज इक्वल टू 4n, m बाई n इक्वल टू 4/17। So m is to n equal to 4 is to 17 will be the answer। रेशियो पता चल गया। नेक्स्ट नंबर 15, the midpoint of the line segment AB
शोन इन द डायग्राम, डायग्राम में अपने को शो किया, देखिए ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, इसका मिड पॉइंट है 4,-3। कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो इसको a,0 ले लो। और ये y एक्सिस पे लाई करता है, यदि ये y एक्सिस पे लाई करता है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको 0,b ले लो। और इस डायग्राम को ऐसे देखो, ये रहा a,0, ये रहा b, 0,b, और इसका मिड पॉइंट 4,-3। इस लाइन को अब देखो ऐसे, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। सर बहुत इजी है a और b का कोऑर्डिनेट्स निकालना। a + 0/2 = 4, यानी a = 8। 0 + b/2, 0 + b/2 = -3, यानी b = -6। a और b का वैल्यू पूछा था, a और b का वैल्यू, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b। तो a का कोऑर्डिनेट विल बी a = a,0 यानी कि 8,0, b का वैल्यू विल बी 0,b यानी कि 0,-6। नेक्स्ट नंबर 16 छोटा सा है, यहाँ हट जाएगा। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन a जिसका कोऑर्डिनेट है 7,3 एंड b ऑन द x एक्सिस उस एब्सिसा इज 11। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो जो x कोऑर्डिनेट है उसको एब्सिसा बोलते हैं, वो तो पता चल गया। और ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट विल बी 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस, AB विल बी द डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट्स। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 17। Sum number 17. The center O of a circle has the coordinates 4,5. Center का coordinate है 4,5 and one point on the circumference is 8,10. Find the coordinates of the other end of the diameter of the circle through this point. तो यदि हम diameter draw करें तो इस diameter का other point मतलब ये वाला point निकालने बोल रहा है। ये दोनों point मेरे पास है, इन दोनों पॉइंट का ये जो है ये मिड पॉइंट का काम करेगा। इसका कोऑर्डिनेट ले लीजिए a, b, यानी कि सर a + 8/2 करने से 4, a + 8 = 8, a = 0, b + 10/2 करने से 5, b + 10 = 10, b = 0। So the coordinate is 0,0. Number 18. In the figure given alongside लाइन APB, ये रहा A, ये रहा P और ये रहा B। लाइन APB meets the x axis at A, y axis at B. P is the point -4,2, इसका कोऑर्डिनेट -4,2। AP is to PB का रेशियो दे दिया 1:2। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो इसको ले लो a,0 और ये हो जाएगा 0,b। सुनिएगा ध्यान से, लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन। सर ये x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब बच्चा लोग कंफ्यूज क्या चीज को लेके होता है, भैया ये y का ये x का नेगेटिव साइड है तो इसको -a ले लीजिए। अरे जो भी है माइनस प्लस वो बाद में उसका वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, अभी आप उसको पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, ठीक है ना, -a लेने का जरूरत नहीं है। तो देखो इस लाइन को ऐसे, ये रहा a,0, ये रहा p -4,2 एंड दिस इज 1:2। b का कोऑर्डिनेट 0,b। तो पहले x वाला यूज करते हैं, px = mx2 + nx1 by m + n, -12 = 2a, a = -6। अब y वाला यूज करते हैं, py = my2 + ny1 by m + n, 3 × 2 = 6 = b। तो सर a का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -6,0
एंड बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6। सॉल्व कीजिए कॉपी में। Next sum number 19. Calculate the ratio in which the line joining A and B, A का coordinate 6,5, B का coordinate 4,-3 is divided by the line y equal to 2. Divided by the line y is equal to any point which will lie on this line, उसका y का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। ये चीज दिमाग में सेट कर लो। y is equal to 2 is a line, क्या पढ़ाए थे थ्योरी में? y is equal to 2 is a line which is parallel to x axis at a distance of 2 on the y axis. याद करो, in a line which is parallel to x axis the equation is given by y is equal to b where b is y का coordinate। कोई भी उस लाइन कोई पॉइंट को उठा लो, उसका जो y का वैल्यू है वही b का वैल्यू है। यही बताए थे ना, any line which is parallel to x axis the equation is given by y is equal to b where b is y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, जो y का वैल्यू है वही b का है। समझ गया बात को? याद है? तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसका y का वैल्यू क्या मिलेगा? मान लीजिए ये 3,2 आ रहा है तो y का वैल्यू तो 2 ही मिलेगा। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन, उसका y का वैल्यू विल बी 2। तो अब ये y वाला कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम इसमें रेशियो निकाल सकते हैं। py equal to my2 plus ny1 by m plus n, 2m plus 2n equal to minus 3m plus 5n, 2m plus 3m is equal to 5n minus 2n, 5m is equal to 3n, m by n equal to 3 by 5, so the ratio is 3:5। नेक्स्ट नंबर 20। क्लियर है? तो ये वाला बात थ्योरी समझाए थे तुम लोग को। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस द इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू b वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उसका जो y का वैल्यू है वही b का वैल्यू। और x एक्सिस के y एक्सिस से पैरेलल के लिए क्या बोले थे? Any line which is parallel to y axis the equation is given by x is equal to b where b is x equal to a where a is बोले थे ना। any line which is parallel to y axis the equation is given by x is equal to a where a is x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को डालो, उसका जो x का कोऑर्डिनेट है वही a का वैल्यू। नेक्स्ट नंबर 20। 3 पॉइंट्स दिया है, a 10,5, b 6,-3, c 2,1 are the vertices of a triangle ABC। एक ट्राइंगल ABC है, इसका तीनों वर्टेक्स अपने को दे दिया। ठीक है सर। L is the midpoint of AB, L जो है वो AB का midpoint है। L is the midpoint of AB and M is the midpoint of AC, M is the midpoint of AC। ठीक है सर, ये भी बात सही। Write down the coordinates of L and M, show that LM is half of BC। तो पहले L का निकालते हैं। LX equal to 10 plus 6 by 2, ly 5 plus minus 3 by 2, 16 by 2 यानी कि 8, 2 by 2 यानी कि 1। कोई दिक्कत? L of x, y is 8,1। वैसे ही m का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। mx 10 plus 2 by 2, 12 by 2 यानी कि 6, my 5 plus 1 by 2 यानी कि 6 by 2 which is 3। तो m of x, y। सर दो तो पूछा था, l का पूछा, m का पूछा, हम लोग निकाल दिए। अब क्या बोला? ये शो करो कि ln is half of bc। तो पहले lm का डिस्टेंस निकालना होगा और bc का डिस्टेंस निकालना होगा। lm is equal to square root of 8 minus 6 का स्क्वायर प्लस 1 minus 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 minus 2 का स्क्वायर 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 which is 2 root 2। BC निकालना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 minus 2 का स्क्वायर प्लस minus 3 minus 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 minus 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट ऑफ 32। फैक्टर्स निकालो, 2 16, 2 8, 2 4,
2 2 जा, तो ये हो जाएगा 4√2। देखिए LM इज हाफ ऑफ BC आ रहा है कि नहीं? BC को यदि आधा करेंगे तो LM आ ही रहना, हेंस प्रूफ्ड। सॉल्व कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट सम नंबर 21। The line joining P minus 4,5 and Q 3,2 intersect the y-axis at R। बोला y-axis को intersect करता है at the point R। कोई भी पॉइंट यदि y-axis पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। PM and QN are perpendiculars from P and Q on the x-axis। सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम लोग को बनाना पड़ेगा ग्राफ पर। -4, 5, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5, ये रहा पॉइंट P। -4, 5, पॉइंट Q 1 2 3 3,2, ये रहा पॉइंट Q। तो ये ऐसे गया है, यहाँ पर y एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है ये पॉइंट का नाम है R। इसका x का वैल्यू होगा 0, y का कितना पता नहीं। अब बोला है कि PM ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, QN ड्रॉ होगा परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। ठीक है सर। द लाइन जॉइनिंग P -4, 5 and Q 3,2 intersect the y axis at R। PM and QN are perpendiculars from P and Q on the x axis। Find the ratio PR is to RQ। PR is to RQ मतलब M is to N चाहिए ना, यहाँ पर M is to N चाहिए, तो x वाला को यूज कीजिएगा, x वाला फॉर्मूला x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 by m plus n। 0 into anything is 0, 3m minus 4n, 3m is equal to 4n, m by n equal to 4 by 3। ठीक है सर, रेशियो मिल गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, r का y वाला वैल्यू चाहिए, x वाला वैल्यू तो 0 है ही, r का y वाला वैल्यू चाहिए, और m is to n रेशियो निकल गया 4:3। ry is equal to my2 plus ny1 by m plus n। 4 2 8, 5 3 15 by 7, 23 by 7। ठीक है सर, तो r का कोऑर्डिनेट्स 0,23 by 7। दूसरा भी निकल गया। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMQN, PMNQ, ये एक्चुअली क्या बन रहा है? ये ट्रेपीजियम बन रहा है। दिस इज अ ट्रेपीजियम, ये दोनों पैरेलल साइड्स है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सर पैरेलल साइड्स ये दोनों हैं, इधर में 2 है और इधर में 5। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 3, और इधर में 4, 4 और 3 7। हाफ इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 का आधा 24.5। स्क्वायर यूनिट्स लिखिए चाहे यूनिट स्क्वायर। ये पूरा इस प्रॉपर ऑर्डर में सॉल्व करोगे तब बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। Next sum number 22। KM is a straight line of 13 units। KM is a straight line of 13 units। If K has the coordinates 2, 5 and M has the coordinates x, -7, find the possible values of x। कोई भी गली का बच्चा बना देगा इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये आ रहा है -12 का स्क्वायर 144, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 148 माइनस 169 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 148 माइनस 169 is -21।
7 3 ज़ा 21, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाए हैं ना आप लोग को, मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, 7 3 ज़ा 12, 7 minus 3 is 4, x square minus 7x plus 3x minus 21 equal to 0, x into x minus 7 plus thrice of x minus 7, x minus 7 को कॉमन लो, x plus 3, x का एक वैल्यू 7 और एक minus 3, so possible values of x are 7 and minus 3. Next sum number 23. The line segment joining A 2,3 and B 6,-5 is intersected by the x-axis at the point K. Point K यदि x-axis पे lie करता है तो उसका y coordinate will be 0. Write the ordinate of the point K. इसका ordinate निकाल के देना है. सर ordinate निकालने से पहले हम लोग और 0 है. अच्छा कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से. The line segment joining A 2,3 and B 6,-5 is intersected by the x-axis at the point K. कोई भी पॉइंट यदि x-axis पे लाई करता है तो उसका y coordinate 0 होता है. Write the ordinate of the point K. So ordinate will be 0. Ordinate मतलब y coordinate coordinate बोलते हैं ना, x वाला को x coordinate को abscissa बोलते हैं और y coordinate को ordinate बोलते हैं. So ordinate of point K will be 0 क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है. Hence find the ratio in which K divides the line. K किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालने के लिए y वाला वैल्यूज को यूज कर लो. तीनों वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, y का तीनों वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, तो y वाला को यूज कर लो. my2 plus ny1 by m plus n. 0 into m plus n is 0 minus 5m plus 3n. 5m is equal to 3n, m by n equal to 3 by 5. So the ratio is 3:5. सर दो चीज पूछा था, दोनों निकल गया. नेक्स्ट सम नंबर 24. Find the coordinates of the centroid of a triangle whose vertices are this and this. एक ट्राइंगल का तीनों वर्टेक्स अपने को दे दिया ABC. A का कोऑर्डिनेट -1,3, B का कोऑर्डिनेट 1,-1, C का कोऑर्डिनेट 5,1. सेंट्रॉइड यानी GX का फॉर्मूला x1 plus x2 plus x3 by 3, -1 plus 1 plus 5 by 3. So this is 5 by 3. GY is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3. 3 minus 1 plus 1 by 3 which is 3 by 3 यानी कि 1. तो gx, y is equal to 5 by 3, 1. This will be the answer. Next sum number 25. If the line joining the point A and B, तो पॉइंट है A and B जिसका कोऑर्डिनेट है 4,-5 and 4,5. If the line joining the points A 4,-5 and B 4,5 is divided by the point P, such that AP by AB is equal to 2 by 5. AP by AB, तो AB को हम लोग को ब्रेक करना होगा. पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 5AP इक्वल टू 2AB. अब AB को ब्रेक करो. AB को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB. 5AP is equal to 2AP plus 2PB. 5AP minus 2AP is equal to 2PB. 3AP equal to 2PB. AP by PB equal to 2 by 3. सर रेशियो पता चला 2:3. क्या निकालना है क्वेश्चन में? कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो Px is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. 4 2 is 8, 4 3 is 12. 4. Py is equal to my2 plus ny1 by m plus n. 5 2 is 10 minus 15 by 5.
-5/5 यानी -1. सो px, y इक्वल टू 4, -1. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट सम नंबर 26. The midpoint of the line segment joining 2a, 4 and -2, 2b is 1, 2a plus 1. Find the value of a and b. ये इसका मिड पॉइंट है. 2a plus -2/2 equal to 1, 2a minus 2 equal to 2, 2a equal to 2 plus 2, 2a equal to 4 यानी a equal to 2. 4 plus 2b/2 equal to 2a plus 1. a का वैल्यू हम लोग यहाँ यूज करते हैं. a का वैल्यू है सर 2. 4 plus 2b equal to 2 2s are 4 plus 1 is 5 2s are 10. 2b equal to 10 minus 4, 2b equal to 6, b equal to 3. Find the value of a and b पूछा था, आ गया. Next sum number 27. If a and b, a का कोऑर्डिनेट दिया अपने को -4, 3, b का कोऑर्डिनेट है 8, -6. Find the length of AB. AB is equal to square root of x2 minus x1, 8 minus minus plus 4, -6 -3. 12 12s are 144, 9 9s are 81, square root of 225 यानी कि 15. In what ratio is the line joining AB divided by x axis? x axis डिवाइड करेगा. कोई भी पॉइंट यदि x axis पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट विल बी 0. अब ये y वाला वैल्यूज को लेके हम लोग रेशियो निकाल देंगे. 0 इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n. सो 0 into anything is 0 minus 6m plus 3n. 6m equal to 3n. m by n equal to 3 by 6. m is to n equal to 1 is to 2. रेशियो निकालने बोला था, रेशियो भी निकल गया. 15 यूनिट्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स काट लेगा. खाली 15 लिखने से चल ना. नेक्स्ट सम नंबर 28. ABC इज अ ट्राइंगल. G जो है इसका सेंट्रॉइड है. G का कोऑर्डिनेट्स अपने को दिया 4, 3. A का कोऑर्डिनेट 1, 3. B का कोऑर्डिनेट 4, B. C का कोऑर्डिनेट A, 1. फाइंड A and B. फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC. ठीक है सर, पहले बच्चा ये बच्चा भी निकालते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला gx इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3. 4 इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस a बाई 3. 12 इक्वल टू 5 प्लस a इक्वल टू 7. gy इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. gy यानी 3 इक्वल टू 3 प्लस b प्लस 1 बाई 3. 3 3 are 9, 4 प्लस b इक्वल टू 5. a एंड b का वैल्यू पूछा था, वो तो निकल गया. फाइंड द लेंथ ऑफ साइड BC. साइड BC का लेंथ चाहिए. B पॉइंट जो है वो है 4, 5 और जो पॉइंट C है उसका कोऑर्डिनेट a, 1 मतलब 7, 1. डिस्टेंस BC निकालना है. स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. 3 3 are 9, 4 4 are 16. स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट्स. इसमें भी 2 चीज पूछा था, हो गया. नेक्स्ट सम नंबर 29. Given a line segment AB joining the points A -4, 6 and B 8, -3. Find the ratio in which AB is divided by y-axis. कोई भी पॉइंट यदि y-axis पे लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा
x वाला को यूज करके हम लोग रेशियो निकाल देंगे 0 इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n 0 into this is 0 8m minus 4n 8m is equal to 4n m by n equal to 4 by 8 यानी m is to n equal to 1 is to 2. Find the coordinates of the point of intersection. इसका y का वैल्यू चाहिए तो y के लिए y वाला फॉर्मूला रेशियो पता चल गया ना 1 is to 2 my2 plus ny1 by m plus n minus 3 plus 12 by 3 9 by 3 which is 3. So point coordinate of the point will be 0, 3. The length of AB का डिस्टेंस चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 144 प्लस 81 स्क्वायर रूट ऑफ 225 यानी कि 15 यूनिट्स. सॉल्व कीजिए कॉपी में. नेक्स्ट सम नंबर 30. AB is the diameter of a circle with center C. सर्कल का सेंटर C है और AB is the diameter -2, 5 A का कोऑर्डिनेट 3, -7. Find the length of the radius AC and coordinates of B. तो पहले AC का डिस्टेंस पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 2 -7 -5 25 प्लस 144 स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी 13 यूनिट्स. रेडियस पूछा था आ गया. कोऑर्डिनेट्स ऑफ B. C is the midpoint of AB. इसका कोऑर्डिनेट a, B ले लो. 3 plus a by 2 करने से -2 3 plus a equal to -4 a equal to -7 -7 plus b by 2 करने से 5 -7 plus b equal to 10 b equal to 10 plus 7 यानी 17. तो b का कोऑर्डिनेट्स will be -7, 17. Next number 31. In the figure given alongside the line segment AB, the line segment AB meets x-axis at A and y-axis at B. तो ये हो गया a, 0, ये हो गया 0, B. P is a point जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 4. The point P on AB divides it in the ratio 2:3. तो अपने पास 3 पॉइंट है सर A, B and B. A का हो गया a, 0, B का 0, B और ये -3, 4 and the ratio is 2:3. So Px is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. 3 plus 2 5 -15. So 3a equal to -15 यानी a equal to -5. वैसे ही py my2 plus ny1 by m plus n 4 into 3 plus 2 5 5 4s are 20 2b plus 0 2b is equal to 20 b equal to 10. तो a का कोऑर्डिनेट्स हो गया सर -5, 0 एंड b का कोऑर्डिनेट 0, 10. 31 में कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b निकालने बोला था अपने को. नेक्स्ट सम नंबर 32 ICSE क्वेश्चन बैंक का लास्ट सम. कैलकुलेट द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A -4, 2 and P 3, 6 is divided by the point Px, 3. सर रेशियो निकालना है तो y वाला को यूज करो क्योंकि y का तीनों वैल्यू अवेलेबल है और रेशियो m:n मान के चलो. y equal to m/2 plus n/1 by m plus n. 3m plus 3n equal to 6m plus 2n.
6m minus 3m equal to 3n minus 2n. 3m is equal to n. m by n is 1 by 3. So m is to n is 1 is to 3. Ratio 1 is to 3. Also find x. इसका x वाला निकालना, तो अब रेशियो 1 is to 3 यूज करके px का px equal to mx2 plus nx1 by m plus n. 3 minus 12 by 4 which is minus 9 by 4. सर x का वैल्यू पता चल गया, रेशियो भी पता चल गया. अब हम लोग को निकालने बोला लेंथ ऑफ AP. AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. A का कोऑर्डिनेट्स है -4,2, P का कोऑर्डिनेट्स है -9/4,3. x2 माइनस माइनस प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल पर रूट. -16 प्लस 9/4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. सो दिस इज -7/4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1. 49/16 प्लस 1/1. एलसीएम ले लेंगे 16. 49 प्लस 16. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर 1. 65/16 यानी रूट 65/4 यूनिट्स. सॉल्व कीजिए कॉपी में.